Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. I hope all of you are attending online classes daily and doing homework for the day. If any homework is given to you, then you may check your answers the following day. Now, yesterday I have given you practice question 10.11 to 10.16 as a homework practice. I hope all of you have tried that questions. Firstly, today we shall discuss their solutions. So here are the solutions to practice question 10.11 to 10.16. In the meantime, you can open SB27. 10.11 question. In the given figure, two plane mirrors M and N are perpendicular to each other. You can see there are two mirrors. This is mirror M and this is mirror N. These are perpendicular to each other, forming 90-degree angle. CA is the incident ray, this is the incident ray, and BD is the reflected ray. और BD कौन सी रे है? जब ये रे यहाँ स्ट्राइक करती है N मिरर को तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे चली जाती है और फिर इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ पे आ जाती है. दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. You have to prove that incident ray is parallel to reflected ray or CA is parallel to BD. So first of all, given and to proof is very important to write. You can pause the video and write down given and to proof. But if you have already solved these sums in the manner as I have told you, then very good. You may check and hopefully you can ensure that you haven't done any kind of mistake. Here is the proof. First of all, the three angles which are of 90 degree are given to you in front of you, and you can see the sum of all the four angles which are forming in a quadrilateral. Which quadrilateral? AOBP, that is this, are of 360 degrees. Here normal means, in these 2 points, normal means when we draw a line which is parallel to the plane. Like a mirror is given to you, this is the incident ray and this is the normal ray, then this is the reflected ray, then the normal ray will be this. रेड कलर वाली जो होगी वो नॉर्मल होगी, जो कि मिरर के परपेंडिकुलर होगी, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के साथ वो हमेशा इक्वल एंगल बनाती है. एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है बेटा. अप टू हियर पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन. Then putting the value 90 degree of the given angles, we have taken out APB is also 90 degree, that is this angle is also 90 degrees because all three were 90 degrees. Now angle BAC equals to angle 1 plus 2, ये जो angle दिया हुआ है आपको, and angle ABD is equals to angle 3 plus 4. बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डायग्राम में 1 2 3 4 को मेंशन करना. अगर कोई कंस्ट्रक्शन बना रहे हो उसे मेंशन करना. समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉल्यूशंस में तो नंबरिंग को यूज़ कर लेते हैं लेकिन डायग्राम में शो नहीं करते हैं. इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू गेट क्रेडिट एट ऑल. देन फिर बच्चे बोलते हैं कि हमें मार्क्स नहीं मिले, हमने तो सिर्फ एंगल्स ही मार्क नहीं किए थे. बेटा एंगल्स मार्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अगर गिवन है डायग्राम तो भी ड्रॉ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन नेक्स्ट, एंगल सम प्रॉपर्टीज अप्लाइड APB PAB प्लस PBA. आई थिंक दिस ट्राइंगल विल बी देयर. yes, so all the three angles of this triangle is equals to sum is equals to 180 degree, which we have applied here. Pause the video and note down the solution up to here. Here comes the next slide. Now we have put value of APB, that is 90 degrees, and angle 2 plus angle 4 comes out to be equals to 90 degrees here. So we know angle of incidence is equal to angle of reflection as by the law of physics. Therefore angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. Now these values will put in the equations
Now you can see adding 5 and 6, all the 4 angles comes out to be 180 degree, hence showing CA is parallel to BD because of converse of co-interior angles. अगर co-interior angles ही आपस में सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, कौन से बेटा, ये वाला और ये वाला, ये को इंटीरियर एंगल है बिकॉज दीज एंगल्स आर गेटिंग फॉर्म्ड इन यू। और मैंने आपको बताया था कि को इंटीरियर एंगल्स की पहचान कौन सी होती है, यू। अगर यू में बन रहे दोनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्रीज हो जाता है तो वो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। देयरफॉर सी ए इज पैरेलल टू बी डी। फॉर दिस यू कैन पॉज द वीडियो टाइम टू टाइम on the slides where you are getting proofs, and you can once firstly write down all the entire solution and then you can read it 2 times again. Practice question 10.12. The question was, in triangle ABC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at point T, then you have to prove angle BTC is half of angle BAC. बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। आई थिंक इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप उस मेथड से भी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लेबलिंग डिफरेंट है, अदरवाइज द क्वेश्चन इज टोटली सेम। But for your reference, I will pause, you can pause the video, I will show you all the slides. So this is the first slide of the solution. Here is the second slide of the solution. You can pause and note down. And here is the final slide of the solution. You can pause and complete the solution. Practice question 10.13. Prove that the bisectors of any pair of corresponding angles formed as a result of transversal intersecting two parallel lines are parallel. क्वेश्चन में बेटा ये बताया गया कि अगर आपके पास दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जैसे मैंने इन एंगल्स को हाईलाइट किया है, दीज आर टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या बना रहे हैं, ये एफ बना रहे हैं, ठीक है। अब इन एंगल्स के हम बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर। तो आपने ये प्रूव करना है कि ये दोनों बाइसेक्टर्स भी पैरेलल होंगे, दीज टू बाइसेक्टर्स विल बी पैरेलल ऑब्वियसली बेटा, बिकॉज अगर कंप्लीट एंगल इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। यू कैन सी दिस, ये हाफ भी इक्वल होगा और ऊपर वाले जो हाफ हैं वो भी इक्वल होंगे, राइट। तो उस केस में ये लाइन है और ये वाले एंगल्स ब्लैक वाले जो मैं मार्क कर रही हूँ ये इक्वल हो जाएंगे और ये ट्रांसवर्सल है, राइट, दीज एंगल्स विल बी इक्वल। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और जब ये इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती है, तो ये दोनों बाइसेक्टर्स भी पैरेलल हो जाएंगे। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन वट एवर इज गिवन टू यू हियर। हियर इज़ द फाइनल स्लाइड। जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है वही इन्होंने यूज़ किया है। इन्होंने एंगल ई पी आर को, इस एंगल को एंगल पी क्यू एस के इक्वल प्रूव कर दिया है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई हैं और ये ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये दोनों एंगल्स ही इन्होंने इक्वल प्रूव कर दिए हैं, राइट। Practice question 10.14. A triangle must have at least 2 acute angles. Justify your statement. एक ट्राइंगल में कम से कम 2 एक्यूट एंगल्स तो होने ही चाहिए, तभी वो ट्राइंगल फॉर्म हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ये। सपोज ओनली वन एंगल से एक्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ एक्यूट, अगर सिर्फ एक एंगल एक्यूट होगा बाकी दोनों ऑब्ट्यूज हो जाएंगे। द ट्राइंगल हैज़ 2 राइट एंगल्स, तो उसमें एजम्पशन क्या होती है, फर्स्ट एजम्पशन लेके चलते हैं कि ट्राइंगल में 2 राइट एंगल्स हैं और सेकंड एग्जाम्पशन है कि ट्राइंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन अप टू हियर। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बाय द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी एक्स प्लस 90 प्लस 90 इज 180 एंड अगेन हियर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 180 डिग्रीज, ओके। बट y और z जो है वो 90 से ग्रेटर हैं, तो आप इनकी 90 से ग्रेटर की वैल्यू पुट कर सकते हो। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन अप टू हियर।
इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0 डिग्रीज, क्योंकि 180 में से 90 + 90 180 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास क्या आ गया 0 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई एंगल 0 डिग्री का फॉर्म हो जाए किसी ट्राइंगल में। सेकेंड एजम्पशन में क्या था? बाय द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव ही चली गई बिकॉज दोनों एंगल्स क्या लिए थे? 90 से बड़े। जैसे कि मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ स्लाइड में, अगर यहाँ पे 90 और 90 को प्लस करेंगे दूसरी तरफ जाके 180 माइनस हो जाएगा और x कितना आ जाएगा 0। और अगर यहाँ पे मैं y और z की वैल्यू 91 और 91 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास दूसरी तरफ जाके माइनस करने के लिए क्या आ जाएगा 182 डिग्रीज। तो x की वैल्यू क्या -2 डिग्री आएगी? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। That means finally we have come to the conclusion that x cannot be 0 in the triangle and x cannot be negative in the triangle. Hence the triangle must have at least 2 acute angles. कम से कम 2 acute angles तो होंगे ही। बेटा सबसे पहले जो एजम्पशन स्लाइड नंबर 1 पे जो एजम्पशन 1 और एजम्पशन 2 थी उसके नीचे ये जो ब्लू कलर वाले बॉक्सेस है ना, तो आप इसे इस टाइप से बना सकते हो अपनी नोटबुक में। जैसे एजम्पशन 1 लिख दी, एजम्पशन 2 लिख दी बॉक्स में, ठीक है, और नीचे पूरा सोल्यूशन उसका आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे तो स्लाइड्स हैं तो अलग अलग बॉक्सेस में दिए गए हैं, आप सिर्फ एक बड़े बॉक्स में भी इसको पूरे सोल्यूशन को दोनों के नोट डाउन कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर द रेज फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग टॉर्च रिफ्लेक्ट ऑफ अ मिरर सच दैट P and Q आर इंसिडेंट रेज एंड M and N आर द रिफ्लेक्टेड रेज। एक टॉर्च में से लाइट निकल रही है और वो मिरर के साथ रिफ्लेक्ट करके रिफ्लेक्टेड रेज को वापस भेज रही है, ठीक है। इंसिडेंट रेज जो मिरर के ऊपर पड़ रही हैं वो है P and Q, और जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है वो है M and N। तो इज M इज पैरेलल टू N, आपने रीज़न बताना है इसका। हेयर इज़ द सोल्यूशन गिवन टू यू। आप देख सकते हो बेटा थोड़ी सोफिस्टिकेटेड सी डायग्राम है, लेकिन आपने इसे ड्रॉ कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऐसे पैरेलल लाइंस लगानी है। लाइक आप नीचे एक मिरर ड्रॉ कर लिया, आपने पैरेलल लाइंस लगाई 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे पैरेलल लाइंस लगाई। अब आपने इनको रिफ्लेक्ट करना है, तो रिफ्लेक्ट करने के लिए आप भी बाकी वाली लाइंस को भी स्केल की हेल्प के साथ पैरेलल ही लगाओगे, लाइक दिस। ऐसे भी बना सकते हो। ये थोड़ी सोफिस्टिकेटेड सी, इसमें एंगल्स जो हैं वो छोटे दिए हुए हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है मैं बताती हूँ आपको। इन्होंने ऐसे इसे रिफ्लेक्ट किया हुआ है। आप डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि दिस इज़ अ मिरर गिवन टू यू। अगर आप यहाँ से ब्लैक कलर के साथ एक रे बना रहे हो तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है, ठीक है। फिर आप येलो के साथ बना रहे हो तो उसकी रिफ्लेक्टेड ये रे ये जा रही है। अगर आप ग्रीन के साथ बनाओगे तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि DBH और ABC एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। DBH रेड कलर एंगल इज गिवन टू यू, ये वाला जहाँ पे मैंने रेड डॉट लगाई है, ये किसके इक्वल है? ABC के, ब्लू वाले एंगल के इक्वल है जहाँ पे मैंने ब्लू डॉट लगाई है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, सो दीज एंगल्स विल बी ऑफ 147 डिग्रीज। तो HGI और DBH भी इक्वल दिए हुए हैं। अब HGI एंगल कहाँ पे आप देख सकते हो? दिस इज H, दिस इज G एंड दिस इज I, रेड कलर एंगल here, that is equal to DBH। तो वो भी इसी रेड कलर एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो M क्या हो जाएगी? N के पैरेलल हो जाएगी। दोनों इंसिडेंट रेज क्या हो जाएंगी? पैरेलल, कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम से। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट पूछा गया है इज P पैरेलल टू Q, गिव रीजन। ऑब्वियसली बेटा अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल होंगी तो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी पैरेलल होंगी, बट उस केस में जिस केस में मिरर जो है वो एक प्लेन सरफेस होगा। अगर मिरर टूटा हुआ है या फिर कोई रफ सरफेस है आपके पास, रफ ग्लासी सरफेस है आपके पास, तो उस केस में रेज, इंसिडेंट रेज कभी भी पैरेलल नहीं होती, लाइट जो है वो बिखर जाती है।
You can pause the video and note down the solution. In this question, somewhat of the physics concepts are also used. Here is practice question 10.16. The figure shows carpenter use parallel wall studs in building supports for walls. Describe 3 ways a carpenter could guarantee that the wall studs AB and CD are parallel. एक कारपेंटर ने पैरेलल वॉल्स के लिए स्टड्स को यूज़ किया है एज अ सपोर्ट. आपने ये बताना है, डिस्क्राइब करना है आपने 3 वेज़ में कि कारपेंटर इस चीज़ की गारंटी ले सकता है कि ए बी हमेशा सी डी के पैरेलल ही रहेगा. उससे कभी भी गलती नहीं होगी कि ए बी और सी डी जो उसने स्टड लगाए हुए हैं वो पैरेलल नहीं हैं. आपने प्रूव करना है कि ये दोनों स्टड्स जो हैं वो पैरेलल नहीं हैं. फॉर वॉल स्टड्स ए बी एंड सी डी टू बी पैरेलल, अ कारपेंटर कैन इंश्योर द फॉलोइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या इंश्योर कर सकता है कि ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी. कौन सा एंगल बेटा? ये एंगल और ये एंगल. क्यों? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग Z and these are alternate interior angles. Then studs passing through E, F and G have the same length. ये जो बीच में स्टड्स लगाए हुए हैं उसने, ये वाली सपोर्ट्स लगाई हुई हैं, ये 3 पॉइंट्स में से पास होके जा रही हैं जब इस लाइन को टच करती हैं E, F एंड G को. पहले आप इतना सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो. If we consider BC as the transversal and extend AB and CD, अगर हम AB और CD को एक्सटेंड कर दें और BC को एक ट्रांसवर्सल ले लें तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल NBC दैट इज दिस एंगल एंड प्लस DCB दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. क्यों? बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स. ये यू में बन रहे हैं. मैं दोबारा से यू को हाईलाइट कर देती हूँ डिफरेंट कलर से. इस यू में बन रहे हैं, राइट? तो ये उसकी थर्ड एजम्पशन हो गई कि देखो ए सी और बी डी पैरेलल हैं, क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी लग सकती है. बेटा इस क्वेश्चन में आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, लेकिन वो कहाँ लगेगी? बीच वाले स्टड्स के ऊपर तो लग सकती है, एंड वाले स्टड्स के ऊपर नहीं लग सकती, राइट? So it was all about the daily review of yesterday's homework. And your today's homework is you have to try practice question 10.16 to 10.22. And you can check the solutions of these questions in the next lecture. That's all for today. Happy learning.